السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش ہو خبرن تفصیل سابق ممبر اسمبلی گریز فقیر محمد خانن یہ تلسی باغ سری نگرس مز مبینہ خودکشی کرت زندگی ہن خاتمہ کور تت ایوانس مز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن ام حوالہ افسوس اظہار کران غمزدہ خاندانس ست تعزیت اظہار کورمت یل زن ات موقع پہ لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرمان تے پنہ پارٹی ہند طرف دکھک اظہار کور یپر سپیکر سندس ونس پہ ایوانس مز تمام ممبران اسمبلی کھڑا سپدت 2 منٹن ہز خاموشی تے اختیار کرمز محمد خان صاحب انہوں نے خودکشی کی ہے گولی کے ذریعے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے. میں اپنے طرف سے ہاؤس کے طرف سے ان کے لوائقین کو تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ حاصل کرے. عثمان جی کو یہ تو بڑی نیوز میں کنفرم کر رہا تھا. ابھی یہ کنفرمیشن مجھے نہیں ملی تھی. اب آنریبل سی ایم صاحب نے کنفرم کر دیا ہے کہ میں اپنی طرف سے تعزیت کرتا ہوں فیملی کے ساتھ. اور یہ سامنا بڑا دکھ سوچناک دکھ والا بنیا ہے. جموں کشمیر اسمبلی ہند اجلاس یہ آز تھے جمس مز جاری رود یا دوران ممبران اسمبلی طرف عام لکن بے روزگار نوجوان تعمیر و ترقی ہند مسئلہ وتلان تو سرکار طرف ممبروں طرف وتلان آمتن مسئلہ ہند جواب دن تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن مطالبات زرن ہند جواب دیوان جموں کشمیر مز ایمنسٹی سکیم لاگو کرنک اعلان کران وونمت یمو لکو طرف بجلی فیس ادا کرنے آمت ان لکن یہ بے ایک لٹ راحت دین یل زن تمو حزب اختلاف طرف وتلان آمتس معاملس حوالہ کت کران ون تم حکمت عملی سان یم پھر میدانس مز ورتمت تو تمن امید 5 ؤہر نیرن تم کامیاب سپدت. جناب چیئرمین صاحب ونٛدٕ ژَلہِ شیٖن گَلہِ بیٚیہِ بہار. سردیوں کا موسم نکل جائے گا, برف پگھل جائے گی, پھر سے بہار آئے گا. سمجھدار کھلاڑی وہ ہے جو حالات کو دیکھ کے جو ہے اپنے کھیل کے طریقے کو بدلتا ہے. میں نے گیم نہیں بدلا, میں نے گیم نہیں بدلا, میں آج بھی وہی سفید کرکٹ کے کپڑوں میں ہوں. تیز بولنگ کر رہا تھا کیونکہ اس وقت آسٹریلیا کی گرین پچ تھی, تھوڑا بیس کا فائدہ ہوا تو بیس کیا. اب بی سی سی آئی کے اسپن والے پچ پہ کھیل رہا ہوں, اب اسپن کر رہا ہوں. مقصد یہی ہے کہ ہم جیتیں, گیم نہیں کھیلا نا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو شروعات فٹ بال سے کر رہے ہیں پھر خاتمہ جو ہے کسی اور کھیل سے کریں. کرکٹ کھیلنے کے ارادے سے آئے ہیں, اوپر والے کی چاہت رہی تو میچ جیت کے ہی یہاں سے 5 سال کے بعد نکل جائیں گے. ہر بار یہ ایمنسٹی جو ہے ہم دے نہیں سکتے. تو یہ جو اور ہم ون ٹائم, ہم ہمیشہ کہتے ہیں ون ٹائم ایمنسٹی, اینڈ اب 7ویں بار ہم ایمنسٹی دے رہے ہیں. تو ون ٹائم نہیں 7 ٹائم. تو میں کم از کم اس ہاؤس میں, چاہے مجھے اس کے بعد باہر مار پڑے نہ پڑے وہ دوسری بات ہے, لیکن اس ہاؤس کے ٹرم اگلے 5 سال, اس کے بعد میں ایمنسٹی جو ہے ڈومیسٹک کنزیومرز کو نہیں دوں گا. یہ ایمنسٹی انٹرسٹ, کمپاؤنڈ انٹرسٹ, پینلٹی معاف, پرنسپل کے لیے بھی اب میرا ارادہ ہے کہ ہم ایک نیا ایک اسکیم لائیں جس کے لیے میں پاور اور فائنانس والوں سے بات کر رہا ہوں, جس میں کہ ہم انسینٹیوائز کریں جو ان کا جو پینلٹی جو ان کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اس آؤٹ اسٹینڈنگ کو ہم انسینٹیوائز کریں گے اپنے آگے کے پیمنٹس کے ساتھ. جتنا وہ آگے دیں گے اس میں ان کو پھر پرانے پہ جو ہے کنسیشن دے کے
पुराना भी हम थोड़ा सा चुकाएंगे और उनको आदत दिलवाएंगे आगे के बिल जो है वो भरने की, ताकि कम से कम इस महकमे को हम थोड़ा क्लीन अप करें और लोगों को हम आदत दें बिजली का बिल भरने की। इसी के साथ मीटरिंग भी जुड़ा हुआ है, जितनी मीटरिंग होगी उतना हम लोगों की मदद कर सकेंगे। तो ये एमनेस्टी स्कीम जो है, इस आज मैं हाउस के हवाले से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद थोड़ी सी हम बिजली बिल भरने का काम जो है उसमें बेहतरी लाएं। टाउनशिप के हवाले से हम बात करते हैं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई टाउनशिप का प्रपोजल नहीं आया है, मैंने गलत नहीं कहा। फिलहाल मिनिस्ट्रियल लेवल पे टाउनशिप को कोई भी प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नहीं आया है, लेकिन जब आएगा उस पर हमें गौर करना होगा। हम जब टाउन सिटीज को डीकंजेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को लेंगे कहाँ? जो शहर खास के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, जो पुराने जम्मू शहर के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर है, वो बार बार कहते हैं ना, एक एक घर में 4-4, 5-5 फैमिलियां, इनके लिए ऑर्डिनेट अरेंजमेंट करना होगा। तो टाउनशिप को लेके जब ये बवाल पैदा होता है ना, पता नहीं किसको बसाएंगे, अपने लोगों को बसाएंगे, बाहर से किसी को बसाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा है, जिस तरह आपने जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त मुझे याद है ऐलान हुआ था न्यू श्रीनगर, न्यू जम्मू, ग्रेटर श्रीनगर, ग्रेटर जम्मू। उस वक्त जब शहर को डीकंजेस्ट करने का प्रोग्राम था, वही हमारा प्रोग्राम है। हमारा भी यही इरादा है कि हम नए सैटेलाइट टाउनशिप्स, नए रेजिडेंशियल कॉलोनियां ये हम कायम करें, ताकि जम्मू कश्मीर असम्बली मं आज तम सात हंगाम सपूदमुत येल मेंबर असम्बली शोपियन शबीर अहमद कुलियन सरकारस मांग कर जे पचमन कैंसन वरियन दौरान जम्मू कश्मीर मं खजाना आमरास मज पोस गलत तरीकस मज इस्तेमाल करना आमत मवाल गस स्टेट हाउस कमेटी तश्कील दिन यन युत जन असल हकीक ब्रोह कुन अन यन यल जन पीडीपी तो भारतीय जनता पार्टी वर तमाम मेंबरों तरफ ऐवानस मांग करना आय यह अहम मामल तो स्टेट हाउस कमेटी तश्कील दिन अहम जरूरत। यह भारतीय जनता पार्टी तरफ मवाल ऐवानस मज हंगाम करना आमुत या दौरान मेंबरों तरफ अकिस पे इल्जाम तराशी करना आय। तो जबरदस्त किस्म के इल्जाम लगे थे हम पर जम्मू कश्मीर में 2019 में। एक ये लगा था कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, दूसरा ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी हुकूमतें आई हैं इन्होंने लोगों का इस्तेसाल किया है। 6 साल तक यहां एक हुकूमत रही, 7 साल तक एक करप्शन का केस हम पर साबित नहीं हुआ है, एक। और दूसरा 7 साल का आप चटा खटा निकालें तो आपको पता चलेगा कि यहां जम्मू कश्मीर में तरक्की के नाम पे क्या हुआ है। यह एक इंतहाई सीरियस इशू है और अगर यह हाउस इस इशू पर बात नहीं कर सकता है तो फिर इसका एक इखलाकी जवाब और एक सियासी जवाब सवालिया निशानिया में आएगा। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले में एक हाउस कमेटी बनाए जिसमें सारे लोग शामिल हो और वो इसकी तह तक जाए और ये साबित और इसकी जो तहकीकात होनी चाहिए और टाइम। ये जो सरकार की तरफ से मेंबर है ट्रेजरी बेंचेस का, इस तरीके की डिमांड करना जायज नहीं है। सरकार के पास अथॉरिटी है, पूरी अथॉरिटी है, कौन रोकता है कि किसने करप्शन किया उसको जांच नहीं की जाए। लेकिन आप जो न्यूज बनाना चाहते हैं, जो गैलरीज को ड्रेस करना चाहते हैं, वो जायज नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए, बैठिए, बात करिए, जिसकी जांच करानी करवाइए, लेकिन जिस तर्ज पे जो आपकी मंशा है, वो जो मंशा है, मंशा ठीक नहीं है। ग्रेव इशू है, एक अहम इशू है, पूरा हाउस खड़ा हुआ है सर, पूरा हाउस इसके लिए खड़ा है, एक ग्रेव इशू है। मुझे लगता है पूरे स्टेट की जिक्र है इसमें, स्टेट एक्सचेकर का पैसा गया है, जिस पैसों से हम लोगों का पैसा गया है सर। अगर पूरा हाउस खड़ा है कि इस पे हाउस कमेटी है, मुझे नहीं लगता सर इसमें कोई अपोज करना चाहिए। वो पैसा किसके लिए उनका, और हैरानी की बात है ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं सर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चलेगा किसके लिए वो पैसा। ये इशू जो आया, दिस इज अबाउट पब्लिक मनी, यूज एंड मिसयूज is the primary job of this house, once some honorable member, if it is an accusation, that is to be disproved,
If it is something very right, that's to be appreciated. If this house doesn't do this much minimum, what is the use? पच खबर नामस मज तुन दोबारा खैर मकदम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जैन तुसिन तरफ वन आमुद जे यन पे वाद कशीर मज स्कूल अंदर तलीमी सरगर्मियां बे शुरू सपज लगभग 50,000 नयो तलब इलमो सरकारी स्कूलन मज दाखिल निमोद यमन मज 1,000 खुद ज्यादा तम तलब इलम यमन जहां ते स्कूलस मज दाखिल निमोद डायरेक्टर सिंद तरफ डोरू अनंतनाग दौरस दौरान यमन कथन बावत करना आमज। कि आप जानते हैं कि जब छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए 7 मार्च से हमने मेगा एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट किया पूरे कश्मीर डिवीज़न में। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि 50,000 से ज़्यादा बच्चे अभी तक जो है एनरोल हो चुके हैं, जिसमें से हमारे वो 1,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कभी स्कूल गए नहीं हैं, किसी क्लास में गए नहीं हैं। दूसरा ये कि 1200 के करीब वो बच्चे हैं जो जहनी तौर जिस्मानी तौर नाखेज़ हैं या किसी तरीके से कमज़ोर हैं, वो बच्चे भी उनका इंतज़ाम हमारे स्कूलों में है, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए है, उनका भी एनरोलमेंट हुआ है। 35,000 वो बच्चे हैं जो बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस में जो है इनका एनरोलमेंट हुआ है। तो ये ड्राइव ये अभी आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ इलाके जहाँ हाल ही में बर्फबारी हुई मचेल टंगडार गुरेज वगैरह में, तो वहाँ से काफ़ी डिमांड आ रही है कि इस टाइम को बढ़ाया जाए। हमने वो फैसला किया है इसको बढ़ाने का। इसके बाद हमने, क्योंकि हमारे अभी 11th ये जो 10th में बच्चे थे वो 11th में अब प्रोविजनल एडमिशन में आ रहे हैं, इसी तरीके से 12th वाले बच्चे पास करके वो प्रोफेशनल कोर्सेज या बाकी हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो इनको गाइड करने के लिए एक कैरियर काउंसलिंग का हमने 1 हफ्ते का प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि पेरेंट्स को भी गाइड किया जाए और बच्चों को भी गाइड किया जाए कि बच्चों के लिए क्या बेहतर रहेगा, उनके किस चीज़ में क्या दिलचस्पी है, क्या आगे कैरियर प्रोग्रेशन है। हमारे स्कूलों के टीचर्स, हमारे स्कूल के एक्सपर्ट्स जो है वो उनको गाइड करेंगे। उसके लिए 1 हफ्ते का ड्राइव जो है हमने स्टार्ट किया है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस वक्त एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। बर्फबारी यहाँ भी कश्मीर में देखिए हुई नहीं, उस लिहाज से जितनी होती थी, बारिशें हो नहीं रही है, तो सारे लोग परेशान हैं। तो बुनियादी वजह है कि शायद हम लोग अभी तक इस चैलेंज को फेस करने के लिए उतने जो है तैयार नहीं हुए हैं, या उतनी संजीदगी हमने शायद नहीं दिखाई है, जो कि मुझे लगता है कि हर किसी शहरी का फ़र्ज़ है। और हमारे स्कूलों ने आज लीड ली है कि 1 हफ्ते तक हमारा मेगा जो है वो प्लांटेशन ड्राइव चलेगा। हमने सारे स्कूलों में आज प्लांटेशन स्टार्ट की है। जहाँ छोटे छोटे कंपाउंडर्स हैं वहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगेंगे, जहाँ उसको बड़े प्लांट्स कहते हैं वहाँ बड़े प्लांट्स लगेंगे। तो हमारा टैग लाइन ये होगा कि हर एनरोलमेंट बच्चे का एनरोलमेंट होगा एक प्लांट के साथ, जहाँ स्टाफ मेंबर्स है वो भी एक जो है प्लांट अपना लगाएंगे, ताकि ये ड्राइव एक मास मूवमेंट के तौर पर जो है बढ़ेगा और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम बारामूला पे उड़ी ताम ये कौमी शारा फॉलियनस हवाल कम जारी मकामी लोगों तरफ इल्ज़ाम ईद करान वन आमुद तमीरती काम नाकस तो गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने यमकिन तम तशवीशस मज हन आमद। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया अपील कर आमज अत मामलस कुन गई जोनियन दिन युथ लुकन मज पौध सपदमुत तशवीश दूर करने यीत कसूरवारन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज आने यीन। यह जिला तक कमिश्नर बारामूला सिंध तरफ केन दहनी कर आमज मामलस हवाले जल्दी तहकीकात करना। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट मजीद तफसील फराहम करान। हाईवे बारामूला उड़ी के हवाले से बात करें, क्योंकि लगातार जो है शिकायतें मौसूल आती हैं हमारे पास, और उनका अजाला करने में जो है इंतज़ामिया को हरकत करने की ज़रूरत है। और देखा जाए यहाँ पे एक भाई हैं, इंचार्ज हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो वजह क्या है? वजह यह है सर कि हमने कंपनी को बोला था कि हमें रेता चाहिए, तो इन्होंने बोला हमारा पास है डस्ट, हमने वही लगाया। आपको नहीं लगता है इसमें तकरीबन 80% जो मिट्टी है 20% सर ये क्रशर से आता है, ये पत्थर बाजरी अलग निकलती है, डस्ट अलग निकलता है, वही डस्ट ये यहाँ ये ला रहे हैं। क्या हम ये लगा सकते हैं यहाँ पे? घर में नहीं लगा सकते हैं, तो कंपनी ने बोला हमारे पास यही है तो यही लगाओ। तो चेक करने के लिए कोई आया यहाँ पे आपके पास? टीम नहीं आए हमारे, बस यही इंजीनियर आते हैं, लेबॉर्ट्री वाले आते हैं, बीकन भी आता है। हाँ बीकन भी आता है। अच्छा, जाता है सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो इस काम में लगाया जाता है, तो आखिर वजूहत क्या है? वजूहत ये है कि जब से काम शुरू है, मैं तो मतलब हमें 1 महीना हुआ ये ब्रेस्ट वाल हम काम तो हम ही कर रहे हैं।
लेकिन मटेरियल हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो भी ठेकेदार है मटेरियल कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी ये समझो बीकन ही काम करवा रहे हैं। आपको लगता है ये मटेरियल ठीक ठाक है, ये सही है? नहीं, वो तो वैसे जिस हिसाब से हम देखते हैं ये अक्सर लगाते हैं डेस, हम इसको डेस बोलते हैं, मतलब जो यहाँ क्रशर पे मिलती है बाकी चीज़ें वही लगती है इस वक्त दीवारों में, तो वही लगती है, क्योंकि डेस तो हम नहीं लगा सकते। चाहे R&B हो हमारा डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब भी हम काम लेते हैं अलॉटमेंट लेते हैं हमें वो बाज़ाब्ता रेत लेते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं हमें जी अलाउड है डेस लगाना, मतलब ये जी प्रोवाइड किया है BRO ने। BRO मीन्स की बिकन, इनका डिपार्टमेंट जो है जांच होती है इस काम में? हाँ, जांच कब करते हैं। पत खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम। मरकजी रबत कमेटी हंद सदर फारूक अहमद डार सद तरफ आज श्रीनगर मज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आमज। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान तमो वोनमुत जे ठेकेदारन हंद पोस जेर इल्तवा यम किन तम मुश्किल मज हेन आमद। तमो अम हवाल सरकारस अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन तो ठेकेदारन हज जेर इल्तवा बिल गसन जल्दी वागुजार yin युथ तिहंद बुथ वल मुश्किल दूर सपदन। जो हमने बार बार कहा, यह काम का स्टैंडर्ड सही नहीं रहता है। हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहता है एक्सचेकर सेव है, मगर यह एक्सचेकर सेव नहीं, यह एक्सचेकर लॉस है। आप देखें अगर कोई काम निकलता है 1 करोड़ के हवाले से, एडवर्टाइज कास्ट के हवाले से, कम उस काम का जो स्टैंडर्ड रहना चाहिए कम से कम 10 साल तक 15 साल तक रहना चाहिए। आप देखिए 5 साल के बाद वो काम ग्राउंड पे नजर नहीं आता है, वो काम 5 साल के बाद एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ग्राउंड पर। आप देखिए जब 5 साल के बाद उसकी टेंडरिंग होती है फिर एडवर्टाइज के हवाले से कम हमें एक्सचेकर से 1 करोड़ 1.5 करोड़ निकालना पड़ता है। कम जो 1 करोड़ का टेंडर होता है वो 2.5 करोड़ में एडवर्टाइज होता है, उस टाइम एक्सचेकर को कम 1.5 करोड़ लॉस होता है। डिग्री कॉलेज बॉयज पुलवामिस मज आवाज नशा मुक्त अभियान हवाले एक प्रोग्राम सज कर SP पुलवामा तो तलब इलमन हंद खास तदाद शिरकत कर। अत मौके पर मंशात खिलाफ मुख्तलिफ मामलों पर कत बात करने आए तो लूकन पे जोर दिन आमुत तम गसन वबा नश दूर रोजन युथ पायदार समाज तैयार करनस मज मदद मिल। सर आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ पुलवामा में एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ, एक कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। उन्होंने नशा मुक्त अभियान के रिलेटेड एक प्रोग्राम किया। काफ़ी सारी अवेयरनेस फैलाई गई, बहुत सारे टॉपिक्स को इन्होंने इंक्लूड किया, बट जो मेन फोकस था वो यही था कि नशे को जो हमारी सोसाइटी में अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत सारे स्टेप्स जो स्टूडेंट्स ने बताया कैसे इसको हम काइंड ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस जो DSP साहब है उन्होंने खुद भी कहा कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितना जनूबी कशीर चक अशर दास एजुकेशन जोन अशबल किस गवर्नमेंट मिडल स्कूलस मज आवाज एक जानकारी प्रोग्राम सज कर यथ मज मुख्तलिफ महकम से वाबस्त मुलजमों शिरकत कर। प्रोग्राम बुनियादी मकसद उस मुख्तलिफ स्कीमन हवाल लुकन जानकारी दिन आम लुको तो मुलजमों सान तलब इल्मों ते शिरकत। जन अत मौके पे ज़राए इबलाग रोल ते उजागर करना आओ तो अत मौके पे आखिरस पे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंद पीर मुजफ्फर तो कैमरा मैन तारिक अहमद अवार्ड सत नवाजना आमद ये जन तिहज हौसला अफजाई ते करना आई। We have invited for the common people. The benefit स्कीम जो हमारा डिपार्टमेंट है इट हैज बीन लॉन्च्ड। जिस तरह पावर आपके घर में होता है, अगर ऑफ हो गया आपके घर में पावर होता है। आशा वर्कर तो होंगी आपके गांव में। ऐसे प्रोग्राम नहीं ऐसा नहीं है डॉक्टर, ऐसा नहीं हमारा डॉक्टर। Officials participating, you all know. तो नाज़रीन कोशिश खबर नाम इतना सयान खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमानिल्लाह। लोकल कम्युनिटी है हमारे